Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher. And today we are going to continue the same chapter which we have started few days back. Right. The name of the chapter is Cold War, the Cold War era. That war between two big and powerful countries. Right. So open your book, beta. Cuban Missile Crisis we have done. What is Cold War we have done. The emergence two power blocks we have done. Page number 6. Open your book at page number 6. NATO Warsaw we have done and I have given you very good example. किसको लेकर मुस्कान को और खुद को लेकर के मैंने बोला था आपको दो ग्रुप्स बन गए हैं and 12 countries उधर थे and then it was established and what was the function of that or what was the objective of that है ना ये मैंने आपको कर कर दिया. Now we will read further. Isha, unmute yourself beta. Good morning, ma'am. Good morning. Isha, start reading beta. Page number 6. Left side, last paragraph, international alliances. Yes, ma'am. International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers used their military power to bring countries into their respective alliances. Soviet अब यहाँ तक ईशा ने पढ़ा कि इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा डिटरमिन्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर. जितने जितने अलायंस हुए थे ना सबने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अलायंस बनाई थी. जिस जिस चीज की अमेरिका को जरूरत थी वैसे उसने अपना ग्रुप बना लिया. जिस जिस चीज की सोवियत यूनियन को ग्रुप जरूरत थी उसने अपना अलायंस बना लिया. बाकी इन अदर कंट्रीज को जिसके साथ जुड़ना पावरफुल लगा वो उसके साथ जुड़ गए. As noted above, Europe became the main arena of conflict. पूरा का पूरा यूरोप खराब हो चुका. पूरे के पूरे यूरोप में हौच पौच हो चुका था क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में बट चुकी. In some cases, the superpower used their military power to bring their countries of their respective alliance. जो तो प्यार से आ गए थे ग्रुप में ठीक है. जो प्यार से नहीं आए थे अमेरिका और सोवियत यूनियन ने उनको थ्रेटन कर कर डरा धमकाकर मिलिट्री अलायंस के जरिए अपने में मिला लिया. मतलब बाय हुक और बाय क्रुक those two groups want their group to be strong as compared to the other. हाँ जी चलो ईशा कंटिन्यू. Soviet intervention in East Europe provides an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of Europe. It's not religion, it's region. Region मतलब area. Region to ensure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence. In East and Southeast Asia and in West Asia. Wait. हाँ, the Soviet intervention in East Europe provides an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe. उसने Eastern Europe को अपना सारा हिस्सा ले लिया और खुद को Eastern group बना लिया. Backed by very large presence of the armies in the countries in the region to ensure. इसलिए ऐसा किया ताकि जो उनका ग्रुप है ईस्टर्न ग्रुप जो है हाफ ऑफ द यूरोप रिमेन विद इन द स्फीयर ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ताकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसके इन्फ्लुएंस में रहे. इसीलिए सोवियत यूनियन ने ऐसा किया. ऐसा ही कुछ अमेरिका ने किया. हाँ जी नाउ कंटिन्यू ईशा. Ma'am, I forgot where it was. Search beta, I'll wait for you. In East and Southeast Asia. Yes, ma'am. The United States built an alliance system called Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization. The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea, and Iraq. Yes. Same thing you have read. Now I'm going to clear it. Actually, अब इसने पढ़ा कि in East and Southeast Asia and in West Asia, Middle East, the United States built an alliance.
उसको हम बोलते हैं सीटो, SEATO। जहां जहां पर ये वाले एरियाज थे उस अलायंस को सीटो बोलते हैं। दूसरा अलायंस था सेंटो। अभी तक आपने एक नाटो पढ़ा था, एक वॉर्सा पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हो सीटो और सेंटो। सीटो की फुल फॉर्म थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन। सबसे पहले सोवियत यूनियन के पास कौन आया? चाइना आ गया। चाइना अच्छा दोस्त बन गया सोवियत यूनियन का। कमी अमेरिका को भी किसी चीज की नहीं है, उसके भी बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, ऐसे देशों को साथ लेकर सोवियत यूनियन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया। चलो सुखमन पढ़ो बेटा आगे। द कोल्ड वॉर थ्रेटन्ड। The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers, such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. Cracks and splits within the alliances were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. Yes, वो newly You may ask, wait. मैं शुरू से पढ़ाती जैसे सुखमन ने पढ़ा। अब ये तो कोल्ड वॉर थ्रेटन द डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस। कोल्ड वॉर ने सारी दुनिया को डरा दिया, सारी दुनिया दो पार्ट्स में बट गई थी। Under these circumstances, many of newly independent countries like हम इंडिया, हमें नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। हम पे कौन रूल करते थे? अरमान कहाँ गया तू जिससे पूछने वाली थी मैं? तन्वी। हमारा कॉलोनियल रूलर कौन था? हम किसके अंडर एक कॉलोनी थे? I think British. हाँ जी, ब्रिटिशर्स के अंडर हम लोग एक कॉलोनी थी, ठीक है। And such as Britain and France were worried about they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. उनको लगा था उनकी भी आजादी कहीं चली न जाए। सेकेंड पॉइंट इसने पढ़ा क्रैक्स एंड स्प्लिट। अब दरार आनी शुरू हो गई थी। क्रैक्स एंड स्प्लिट विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। जो दोनों अलायंस हुए थे, कौन कौन से दो अलायंस थे? अरमान टेल मी विच टू अलायंस? अपने वेस्टर्न अलायंस से नाटो अलायंस, ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न का हेड कौन था? अमेरिका। और ईस्टर्न का? सोवियत यूनियन थे। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? क्वार्ड विद यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड इन 1969 दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। 1950 में जरा सा झगड़ा हो गया था और 1969 में अच्छी जमकर उनमें लड़ाई हुई थी। बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर तो नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लिखने वाले हो, द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये तीसरा ग्रुप था और इसमें वो लोग शामिल थे which gave the newly independent country a will stay out of the alliance. Those countries who got newly independence and they were stay out of these alliance, जैसे कि हम इन दोनों अलायंस से दूर रहे। अच्छा, आप ना इस क्वेश्चन पे लिखो, ब्रैकेट शुरू करो, द कोल्ड वॉर। पिछले पेज पे आ जाओ, यहाँ से लास्ट में इस पेज पे आ जाओ, स्क्रीन पे देखो, लास्ट में से यहाँ से ब्रैकेट शुरू करो द कोल्ड वॉर से अप टू बेटा फुल पैराग्राफ अलायंस तक ब्रैकेट में कर लो। फ्रॉम दिस पैराग्राफ यू विल मेड 3 पॉइंट्स। अपने आप इसके 3 पॉइंट बना लेना या मैं बना ही देती हूँ। बनाओ। द कोल्ड वॉर, अप टू इंडिपेंडेंस। दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट बेटा। Okay, up to independence. Now second point, cracks and splits, dispute tak. This will be second point. The other important development, alliance tak. This will be third point.
Ma'am, can you tell the second point again? बेटा एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन है, एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉइंट बेटा। डन बेटा। नाउ क्वेश्चन फॉर दिस, आप अपने हाथ से लिख लो। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा ना, जरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस निकालना पीछे से। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हाँ पर एक चीज देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। हमने क्या करना, यहाँ लिखा है कि समटाइम इट इज सेड दैट कोल्ड वॉर वाज अ सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर एंड दैट आइडियोलॉजी हैड नथिंग टू डू विद इट। कभी कभी लगता था आइडियोलॉजी की कोई वॉर नहीं थी, बस आपस में ही लड़ रहे थे। डू यू एग्री विद दिस? गिव वन एग्जांपल। अब पूछा इन्होंने ये है कि आइडियोलॉजी मैटर करती थी, तो आप इसके आंसर में लिखोगे यस आइडियोलॉजी मैटर्स। एक्चुअली लड़ाई ही आइडियोलॉजी की थी, राइट? ओके, सो आइडियोलॉजी की ही लड़ाई थी और सबसे ज्यादा कंट्री इसको फॉलो करते थे। उसके बाद आप वही लिखोगे जो मैंने उधर जाके आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, समझ नहीं आया मुस्कान? ऐसे ही कर रही है मुस्कान। बता आइडियोलॉजी कौन सी थी? आइडियोलॉजी की, वैसे तू मुझे ये बता, आइडियोलॉजी की वॉर थी? थी मैम। ठीक है, कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी? मैम अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट और सोवियत यूनियन की थी कम्युनिस्ट। ठीक है, ये क्यों लड़ते थे आपस में अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर? वो कहता था मेरी बात सही है, वो कहता नहीं मेरी बात सही है। दोनों अपनी जगह खुश रहते अपने अपने घर में, फिर लड़ाइयां क्यों कर रहे थे पूरी दुनिया के सामने? बता। ये नहीं पता। नहीं पता, मैं बताती हूँ। अब देखो, मान लो तुझ में और मुझ में झगड़ा हो गया। नहीं, तुझ में और मुझ में नहीं, हम क्यों झगड़ा करें, हम किसी और को लेते हैं। ठीक है, मान लो बाहर 2 पार्टीज हैं और उनमें झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? एक मिस्टर एक्स है, वो कह रहा है कि मेरी बात सही है, मिस्टर वाई है, वो कह रहा है मेरी बात सही है। वो दोनों में आपस में झगड़ा नहीं है, वो दोनों में आपस में अपनी बात को लेकर झगड़ा है। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका में अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर झगड़ा था। वो कह रहा था पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट को मानेगी क्योंकि कैपिटलिस्ट दुनिया की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। सोवियत यूनियन कह रहा था नहीं, कम्युनिज्म सबसे बेस्ट पॉलिसी है और इस आइडियोलॉजी को सारी दुनिया मानेगी। एक्चुअली वॉर ही आइडियोलॉजी को अपनी अपनी बात को लेकर थी। इंसान गलत नहीं होता, इंसान की सोच और उसकी बात गलत हो सकती है। अगर 2 इंसान आपस में बात मान जाएं कुछ टाइम बाद तो ठीक है, नहीं तो ये वॉर बहुत लंबी चलती है। और दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ने में नहीं थे और दोनों में वॉर चलती रही। इट नेवर एस्केलेट इनटू हॉट वॉर बट इट वाज अ कोल्ड वॉर। और खत्म नहीं होगी ये लड़ाई अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, दोनों में से एक को तो हारना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना लेसन कि दोनों में से फिर कौन हारा था और कैसे हारा था और फिर कौन पावरफुल बन गया था, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। यही कंटिन्यू करके हेजीमनी चैप्टर जाता है। ठीक है, चलो। हाँ जी अरमान। मैम मेरा एक पॉइंट है। हाँ बोलो बेटा। मैम उन्होंने मतलब एक पूरी कंट्री को क्यों एक ही आइडियोलॉजी देनी थी? मतलब जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट से खुश रहता, सोवियत यूनियन उससे खुश रहता, मतलब एक कंट्री को एक ही आइडियोलॉजी क्यों लेनी थी? वो इसलिए कि वो कहते थे, अमेरिका कहता था मैं पावरफुल हूँ, तो क्योंकि मैं पावरफुल हूँ ना तो सारी दुनिया मुझे फॉलो करे। सारी, तू भी मान जा कि मतलब कि सोवियत यूनियन को कह रहा था कि तू भी मान जा मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है। वो उसको ऐसा कह रहा था। सोवियत यूनियन कहाँ मानने वाला था, वो कहता नहीं तेरी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या होता है, चलो इस पे आज बात करते हैं। कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप, अरमान बताइए जरा मुझे। मनी मैम। हाँ मनी,
ठीक है, तो कैपिटलिस्ट मतलब जिसमें हम मनी को पावर देते हैं और सारी की सारी मनी सब लोगों के हाथ में रहेगी। लेकिन कम्युनिज्म डिफरेंट थिंग थी, उसमें मनी पीपल के हाथ में नहीं, उसमें मनी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो ये दोनों, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। दिस इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। ओके, दिस इज कॉल्ड शॉक थेरेपी दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। अभी इसी रिलेटेड से ही पढ़ेंगे। चलो तन्वी, नाउ स्टार्ट रीडिंग फर्दर बेटा। You may ask why the superpowers needed any allies at all. है After ना, all, with कभी their हमारे nuclear दिमाग में भी यही चीज रहती है। अभी जैसे मुस्कान आस्क्ड जस्ट सेम थिंग कि व्हाई दे वर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, अपने आप में खुश रहते वो, एलाइज क्यों बनाए उन्होंने? अमेरिका तो अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल कंट्री था, उसको किसी की क्या जरूरत थी? फिर भी वो छोटे छोटे देशों को, 12 देशों को साथ ले चल पड़ा। और जो छोटे छोटे देश थे वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, उनको क्यों जरूरत थी बड़े बड़े देशों की? So now Tanvi is reading कि why allies needed. अभी कुछ लिखना नहीं है बुक पे, just listen the topic. After that I will wind up. हाँ जी तन्वी। After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa, and even in Europe, was no match to that of the superpowers. Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to number one, vital resources such as oil and minerals. Just wait. अब तन्वी ने अपने आप ही क्वेश्चन पढ़ दिया, अपने आप ही इसके 4-5 पॉइंट बना के हम आंसर कर लेंगे। एंड दिस क्वेश्चन टुडे यू विल राइट डाउन इन कॉपी। ओके, अच्छा, अब इसका क्वेश्चन जो बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है थर्ड लाइन लास्ट वर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। हाईलाइट करो, हाईलाइटर पास रखा करो बेटा, ये अंडरलाइन वाली नहीं, हाईलाइट करने वाली बात है, पर चलो नहीं है तो आज कर लो आप अंडरलाइन। Nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match of that of superpowers. Yet smaller states were helpful for the superpowers. How? सारी दोनों लाइनें लिख के फिर लिखो how and why. आखिर ऐसा क्या था कि अमेरिका जैसे देश को हमारी जरूरत पड़ गई? हम तो अमेरिका के सामने कुछ नहीं, रशिया के सामने कुछ नहीं, फिर भी इन लोगों को छोटे छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, सो हाईलाइट करके आप एंड में लिखो हाउ और व्हाई। ठीक है, छोटे छोटे, अब क्यूबा था, मेरी बात सुनो, है सुखमन, सुन रही है? अब क्यूबा था, क्यूबा छोटा सा देश था, है ना? तो क्यूबा को लेकर कितना झगड़ा चल पड़ा, चुपचाप कुछ सोवियत यूनियन करी जा रहा है। जैसे ही पता चला अमेरिका को, अमेरिका कहता ना भाई क्यूबा क्या, क्यूबा से छोटा कोई एरिया होता मैं फिर भी ना छोड़ता। अब क्यूबा छोटा सा एरिया था, उसको क्या लेना देना था अमेरिका को, सोवियत यूनियन को? पर फिर भी रातों रात उसको पता चला, उसने सारा अपना ध्यान क्यूबा पे लगा दिया और थ्रेटन करना शुरू कर दिया सोवियत यूनियन को कि चुपचाप अपने मिसाइल, अपने शिप यहाँ से हटा ले वरना अच्छा नहीं होगा। सोवियत यूनियन ने टेट्रस देखा, टेट्रस पता ना तन्वी, टेट्रस क्या था? टेट्रस कल लगाई थी ना क्लास तूने बेटा? Ma'am, when both the sides have the capacity to retaliate against each other. I am proud of you तन्वी। अब दोनों की दोनों पार्टीज जानती हैं मैं नहीं लड़ूंगा वरना मेरा नुकसान बहुत होने वाला है। दूसरी पार्टी भी समझती है अगर मैं इससे लड़ूंगा नहीं, नुकसान तो नहीं होगा बट मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा लड़ने का, तो दोनों नहीं लड़ते हैं। तो डेट्रेस अपनाया था उन्होंने और क्यूबा से उसके मिसाइल वापस चले गए थे और लड़ाई खत्म हो गई थी। बट फिर भी अभी तन्वी ने जो पढ़ा, whichever the things you have highlighted, it means that why bigger countries need smaller countries. स्मॉलर कंट्री, छोटे बंदे को तो बड़े की जरूरत पड़ती है ना, उससे हमेशा बना के रखनी पड़ती है ना? ये तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, बंदा उन 4 बंदों को, पावरफुल बंदों को बुलाए और फटाफट डिस्प्यूट सॉल्व होता है। बड़े बंदों को छोटे बंदे की जरूरत क्यों पड़ती है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, हाँ जी तन्वी, नाउ रीड आंसर। 4 points written here but you will do 5 points, 5th I will tell you, 4th ready-made points you are watching from here। हाँ जी तन्वी। Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to number one, vital resources such as oil and minerals, number two,
territory from where the superpowers could launch their weapons and troops. Number 3, locations from where they could spy on each other. And number 4, economic support in that many small allies together could help pay for military expenses. यस, इन चारों चीजों के लिए छोटे छोटे देशों की जरूरत पड़ती है। जापान बड़ा पावरफुल कंट्री है ना, बट जापान के पास एग्रीकल्चर अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो जापान को भी छोटे छोटे देशों की जरूरत पड़ती है। अब इन देशों को तन्वी ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल। ऑयल नहीं है अमेरिका के पास, ऑयल जाके उसको मिलता है कहाँ से, इराक से मिलता है ना। अदर कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर ऑयल। मिनरल्स नहीं है इन पावरफुल कंट्रीज के पास, कैसे बनाएंगे एरोप्लेन, कैसे बनाएंगे अपने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो छोटे कंट्रीज की जरूरत है। दूसरी बात तन्वी ने पढ़ी, टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे कुड लॉन्च वेपन्स। अरे कोई ऐसा एरिया चाहिए जहां से वो अपने वेपन लॉन्च कर सके, टेस्ट कर सके, तो वो कहां से करेंगे। अब आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा ना, जहां पर टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर कुड लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स, वहां पर लिखो एग्जाम्पल लाइक क्यूबा, लाइक क्यूबा। अब क्यूबा जैसे छोटे देश की सबको जरूरत थी क्योंकि उनको अपने वेपन्स लॉन्च करने थे, राइट। चलो बेटा, उसके बाद इसने पढ़ा लोकेशन फ्रॉम देयर कुड दे स्पाई ईच अदर। एक ऐसी लोकेशन चाहिए होती है, एक ऐसी छोटी सी जगह चाहिए होती है हर कंट्री को, किसी ना किसी देश की, यार यहाँ मैं बैठ कर ना इस एरिया से ना मैं अमेरिका पे नजर रखूंगा। अमेरिका कहता मुझे इस लोकेशन पर मुझे इंडिया की जरूरत है, यहाँ से बैठ कर ना मैं सोवियत यूनियन पे नजर रखूंगा। तो इसीलिए छोटे छोटे देशों की जरूरत होती है, ठीक है। सारा आसमान तो खरीद नहीं लेगा कोई। अब हमारे इंडिया से या पाकिस्तान से एरोप्लेन निकलते हैं ऊपर से, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे तो मैडम एरोप्लेन तो निकल ही सकते हैं, आसमान तो फ्री है सबके लिए, बट फिर भी हमें उन कंट्रीज की परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे रूट मांगना पड़ता है ना। पंजाब रोडवेज की बसेस अगर हरियाणा में चलती है और हरियाणा की पंजाब में चलती है तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। दोनों में झगड़ा हो जाए तो पंजाब रोडवेज वाले कहेंगे हम हरियाणा नहीं जाएंगे, हरियाणा रोडवेज वाले को कहेंगे आप पंजाब नहीं आओगे। तो हमेशा किसी ना किसी को, मैन इज अ सोशल एनिमल, किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमिक सपोर्ट दैट दे स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है यार, मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, तो वो दोनों एक दूसरे से फिर पैसा भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फिफ्थ पॉइंट भी करना है हमने, अब वो मैं पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, दे वर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजन, द लॉयल्टी ऑफ एलीज suggested that the superpowers were winning the wars of the ideas as well, and the liberal democracy capitalism were better than the socialism and communism or vice versa. दोनों में कौन सी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी झगड़ा करने के लिए। सो दिस विल बी फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, यू विल राइट दिस क्वेश्चन, ओके, यू विल राइट दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली जो हाईलाइट किया, दैट विल बी द क्वेश्चन एंड दीज 5 पॉइंट्स विल आंसर। वैसे 4 भी इनफ हो सकते हैं, अगर 4 लिखने हैं तो 4 ठीक है, 5th भी लिखना है तो तभी भी ठीक है। नाउ ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट 18 मार्च। मैम, यस बेटा। मैम ये वाले क्वेश्चन आप नोटबुक पे लिखवा रहे हो? हाँ, ये लिखेंगे हम लोग, ये मैं बाद में लिख लूं, मेरी ना बैटरी 3% रह गई है बस। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, बट लिख लेना, ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Others, please write down today's date and start writing the questions. And after writing, you will have to update the index. Start writing, beta, and I am observing you. पहले वो क्वेश्चन लिख के ना जो हाईलाइट किया वो लिख के, फिर आप इसके चारों पॉइंट लिखोगे। चलो, now I am going to wind up the class and you please complete this question, okay? Thank you very much. God bless you. सुखमन लिखती रहना क्वेश्चन, ओके, बंद नहीं करना क्वेश्चन।